everyone, a very warm welcome to all of you once again on the offline platform of this YouTube channel on Saraswati spoken classes there. Today we gonna discussing our new topic. Today's topic we will take our topic today, make a call. Make a call on mobile करें, on phone. Okay, we take this topic today. What did I give you yesterday? What did I tell you yesterday? So, first of all, we discuss that point, and I made yesterday's point for some time. Then we will start our new topic very first. So, without further delay, I want to tell you one thing to you. First off, we start our chapter, our new topic. Before we start, please, anybody, give me your mobile, please. Please give me your mobile firstly. There is no permission to keep itself it. Okay? Please give me. It is the hard instruction. Thank you very much. Thank you. On. Yes. Okay. Don't touch it. Avoid touch it. Without further delay, बिना देरी के, बिना वक्त जाए के, we will start our new chapter very first. So, before we start, we want to discuss yesterday's topics. What did I tell you yesterday? Please tell me of the things. Understood? I did give you some questions yesterday. I did give you some questions. If you learn at home, if anybody learn and repeat them at home, घर पर रिवाइज किया, चेक करा, चेक किया था, ठीक है, ओके, नाइस. Never miss what I am giving you. Never miss what I am giving you.
नथिंग मोर टाइम, नथिंग टेक मोर टाइम। सिर्फ 5-10 मिनट, 5-8 मिनट उसके लिए निकालना जो मैं देता हूँ, इतना ही निकालना, ज्यादा नहीं। डेफिनेट यू टेक इट्स टाइम, है ना, स्पेंड विद टाइम फॉर व्हाट आई एम गिविंग यू। ठीक है, ओके नाइस। टुडे we will discuss our new topic। बिना वक्त जाए किए, without further delay, we take our new topic। We want to talk our new topic। So tell me what I am asking to you। Tell me, ready and be active to give your answer every time। What I am asking you। जो चीज आपसे पूछा है उसके लिए पहले तैयार रहे, सबसे पहले तैयार रहिए। What you know about that। जो कुछ भी आपको उसके बारे में पता है, तुरंत जवाब देने का प्रयास करेंगे। It is the time of fast mover। फास्ट मूवर्स का टाइम है भाई। At present, who is fast, then he will be definite success in your life, in his life। जो फास्ट है, बोलने में एक्टिव है, सबसे पहले आगे हाथ ऊपर करता है, सर I will give you your answer। What you keep in your mind, tell me without check it is right or wrong। राइट और रॉन्ग को चेक नहीं करना। If your mind, if you want to speak English, if you want to speak fluent English, but when you start your speaking, you speak one sentence and two sentences in front of anybody, but after that what happened, your mind is blank। इसके बाद क्या हो जाता है, आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है, सोचने लग जाता है, तीसरा एक सेंटेंस नहीं निकल पाता। your thought is stuck, your thought is stuck। अरे यार वो बोल दिया, आगे क्या बोलूं, सोचने लग जाता है इंग्लिश में। Oh, this is the most point of view। ये सोचना बंद करो भाई, सोचना है नहीं। आपको बता दिया कि विदाउट हेजिटेशन, डोंट चेक योरसेल्फ, डोंट चेक अगला बोलेगा, अगले को क्या पता मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, सही लगा या गलत लगा, ऐसा नहीं सोचो। डोंट थिंक इन योर माइंड। जो बोला आ गया वो बात बोल दीजिए ना, अगला क्या अक्षर थोड़ा ही है। अरे अगला कौन सा अक्षर है, होगा तो बता देगा, होगा तो आपको इंफॉर्मेशन दे देगा। क्या बोलेगा, मिस्टर स्टॉप बोलेगा ना, तो उससे आपको क्या आपका सुधार होगा। अरे बोलेगा नहीं, उसको क्या जरूरत पड़ी है, बोलेगा भी नहीं, बोल भी नहीं सकता, उसको इतना भी नहीं आता है, नहीं बोल पाएगा आपके सामने। आपको
नंबर, प्लीज गिव मी योर मोबाइल नंबर, प्लीज गिव मी, बोलेगा ना तो वैसी प्लीज, हाँ सी हो गया, और बोलेगा मुझे जल्दी आइए, और बोलेगा जल्दी आपके पास से निकलेगा, प्रयास करेगा जल्दी आपसे छुटकारा पाने का प्रयास करेगा कि तुम्हें से छुटकारा मिले, और चला जाएगा जल्दी। तो आपका उसको अच्छा नहीं लगेगा, आपका जो बोल रहे ना उसका आपका स्टेटस उसके लायक उसके वो ठहर नहीं पाएगा आपके पास में, बोलेगा मुझे लेट हो रही है, क्या बोलेगा मुझे लेट हो रही है ना? क्यों? आपके पास हुनर है, आपके पास स्किल है इंग्लिश का, आप कॉन्फिडेंट, आप बोलते हो स्पीक करते हो इंग्लिश फ्लुएंसी है आपके पास में, तो आपके दो ही शब्द सुनेगा, दो ही शब्द, भैया जी मुझे जाना है, उसको दिक्कत ये होगी कि आप बोल रहे हो, है ना? तो जब कोई बोलता है ना तो लोग जलते हैं, जलना नहीं चाहिए उनको, है जाने दो उसको, अरे तो इंटरेस्टेड होगा वो आपसे बात करना चाहेगा, उसको तो जलन हो गई ना, उसको परेशानी, दिक्कत ये है कि आपको अंग्रेजी आ रही है, आपको इंग्लिश में स्टार्ट कर सकते हो, उसको दिक्कत हो जाती है, जाने दो ना, और कोई आएगा, और कोई हम मिरर के सामने बोलेंगे, मिरर के सामने, है ना? ये जैसे आपको थोड़ा टाइम निकालो, क्या आपको बताया था मेथड, है ना? लिसनिंग, है ना? लिसनिंग, कुछ वीडियो सुनो, कोई क्लिप सुनो, 5-10 मिनट निकालिए आप जीवन में, आप दिन का 5-7 मिनट ऐसा निकालिए, लिसन स्पीकिंग, तुरंत बाद में उसको वैसा का वैसा 2 लाइन सुनी, उसको मिरर के सामने, कोई नहीं है आपका सुनने वाला, आपकी सुनने वाला कोई नहीं, आपसे सब जानते हैं, है ना? आपसे तो मिरर के सामने खड़े हो जाइए, दर्पण के सामने, उसमें आप 2 लाइन सीखा, जो सुना उसको कानों से सुनना है, सीखना नहीं है, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, लिखना इज नॉट इम्पोर्टेंट, है ना? लिखने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास में, किसी के पास नहीं होता है। अब उसके बाद क्या करना है, लिसन, उसी बात को रिपीट करने का मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ मिरर, लिसन स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग, ये मेथड आप अपनाइए अपने लाइफ में। इफ यू वांट टू a well anchor, English anchor, if you want to make yourself a trainer, आप चाहते हो, सभी चाहते सब हैं, लेकिन उनके लिए थोड़ा प्रयास करना, ट्राई, इफ यू ट्राई to improve your English, then you will be success, then you will be definite, I promise you, then you will be success one day definitely, in 2 days, बहुत ही कम समय, short time, आपको सफलता मिल जाएगी, ये मेरा वादा है आपसे। आप यहाँ मेरे पास आ रहे हो, I guarantee you within 2 and about 2 months, stay with me, then I will be you perfect in spoken English, I guarantee. Am I right? You are right. So ये काम करना है, लिसन करना है, समझिए सारे फुल फॉर्म, लिसन, कुछ वीडियो सुनो, कुछ इंग्लिश के स्पीकर को सुनो, मेरा सुन लो, है ना? निकाल करके यूट्यूब निकाल करके थोड़ी देर सुन लो, और किसी को सुन लो, जो चाहे उसको सुन लो, जो बढ़िया आपको लगे, ये सुनो, टाइम तो चलो टॉपिक चालू करते हैं। टॉपिक में हो, टॉपिक के से हट गए, टॉपिक से हट गए थे तो ओके, एक आपको स्ट्रक्चर देता हूँ स्पीकिंग के लिए, बोलने के लिए क्वेश्चन दे दूंगा, क्वेश्चन स्टार्ट करें, एक स्टेप से दे दूँ।
इसके ऊपर बात करेंगे, उसी से बात करेंगे, उसी से बात करेंगे, उस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फिर दोनों वर्ड आपस में स्ट्रक्चर। तो आप लगाए सब्जेक्ट, सबको आता है सब्जेक्ट, वर्ड वर्ड, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ड, ठीक। और क्या लगाइए एक चीज, ठीक, इसको बोलते हैं HV। वर्ड का मतलब यहाँ मेरा HV शेयर, HV शेयर और प्लस अदर वर्ड। आप जैसे एक एग्जांपल हिंदी में लेता हूँ, हिंदी में एग्जांपल लेता हूँ, हिंदी में एग्जांपल मैं बताइए सारे बच्चे कौन बता सकता है? Who can tell me? एक सिंपल सा छोटा सा सेंटेंस है, लिसन, लुक हियर, निशान, निशान, लुक हियर। मैं पढ़ता तो हूँ, देखो सुनो ना, मैं try to make translate into English. Everybody try to make this sentence translate into English and tell me. Who can tell me? A very simple sentence है, very small and simple and attractive thing, attractive statement I am giving you. Thought in your mind and tell me. What? चलो बताओ बेटा, बताओ भाई। Who can tell me? Sandeep, can you tell me? Stand straight. Stand straight. I am reading. ऐसे बोलो सर, I can tell me। बोलो, यही से स्टार्ट होता है सारी चीजें। सर I can tell me, ये चीज पूरा बोलो, बोलो सर I can tell me easily, easily, okay। So then I am reading. what he is speaking, what he is telling us, yes, I am reading. I am Reading. reading I am reading, हो गया? I am reading। तो मैं पढ़ता हूँ, इसका क्या हो जाएगा? I am reading, but listen me with carefully, it is wrong। जल्दी आना जी, फोन पे देखो। सर मेरा इस पॉइंट पर टॉयलेट मैं पढ़ता हूँ। हाँ मेरा नहीं गोइंग टू टॉयलेट फोन पे रख। सही है ना सर? ऐसे होता है क्या? I do studio से। टॉयलेट का वेयर आर गोइंग टू टॉयलेट, where are you? गोइंग हाँ मैं पढ़ता सर, ये हूँ, नहीं। पढ़ता तो हूँ, I do study। है? I do study. ये कुछ लगा मेरे को। I Do study. do study, S-T-U-D-Y, okay। और study read भी होता है, एक ही बात होती है, ठीक। स्टडी करना, पढ़ना।
और रीड पढ़ना। तो आई डू स्टडी, मैं पढ़ता तो हूँ, इट इज द करेक्ट। मैं पढ़ता तो हूँ और मैं पढ़ता हूँ सेकंड है, मैं कितना अंतर है देखो, पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ क्या हो जाएगा, सुनो ध्यान से, चीजें समझने का प्रयास करो। अरे छोटा है लेकिन बहुत शानदार है, बहुत अट्रैक्टिव है। उसमें बोल सकता है अगला अगला आपसे कुछ भी इंट्रोडक्शन ले सकता है। आपका दूध का दूध पानी का पानी जान सकता है, या आप कितने पानी में हो इंग्लिश के अंदर, कितने गहराई में हो इंग्लिश में, है ना। तो कुछ भी बुलवा सकता है आपसे ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, है ना। तो ये मैं पढ़ता हूँ, बिल्कुल इजी है, इससे भी इजी होगा। आई क्या हो जाएगा, आई वो पढ़ता हूँ, या आई स्टडी, ओके आई स्टडी, देखो कितना इजी है, आई स्टडी। तो मैं पढ़ता हूँ, तुम पढ़ते हो, ऐसे सेंटेंस बोलना सीखे, कम्युनिकेशन करेंगे आज इनका, इनसे वार्तालाप करेंगे, ऐसे सेंटेंस को रिपीटेशन करेंगे एक दूसरे से। मैं पढ़ता हूँ, तुम पढ़ते हो, ये पढ़ते हैं, वो पढ़ता है, सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, हम सीखते हैं, हम अंग्रेजी सीखते हैं, ये सारे आपको बोलना होगा मेरे साथ में अभी आप, ठीक है ना। तो आई रीड बोलो बोलो मेरे साथ में, फास्ट मूव करो, आई रीड, यू रीड, आई रीड, यू रीड, दे रीड, he reads, she reads, we read, सबको आती है ना, read, हाँ बच्चे पढ़ते हैं, क्या, children reads, है ना, children read। अब लगाना उसमें ऐसे है, मैं पढ़ता तो हूँ, तुम पढ़ते तो हो, लेकिन याद नहीं रहता। अब होते ना कितना एडजेक्टिव है, ये तो इम्पेटिक है, जोर देने वाला, जोर दे रहा है, यहाँ पर जोर देता है, इम्पेटिक बोलते हैं इसको, इन सेंटेंस को। ये प्रेजेंट सिंपल का तो है, लेकिन क्या है, इम्पेटिक है। इम्पेटिक सेंटेंस है, इम्पेटिक असरदार, जोरदार, जोर दे रहा है। पढ़ता तो हूँ सर आई डू रीड, वो पढ़ता तो, बट है ना, forget if you right, कुछ देर बाद भूल जाता हूँ, कुछ देर बाद भूल, सर मैं पढ़ता तो हूँ, समझ गए, सर मैं पढ़ता हूँ, सर आई डू रीड, बट I forget after some time, चीजें भूल जाता हूँ, I बोलो, सुनो ध्यान से, don't watch other side, don't glance, ग्लांस होता है भूल के देखना, सी देखना, वाच देखना सामने, ग्लांस ऐसे देखता था वो भूल करके, इसको ग्लांस बोलते हैं, ग्लांस, है ना। एक चीज को नजर से पूरी गहराई से देखना, ऐसे भूल के, है ना, देखते हैं ना कई बार ग्लांस, ठीक है ना, उसको ये सिनोनिम्स हैं। सो अब मुकेश, नाउ we are communication, we are going to communication with each other, we are going to start our communication with each other one by one, okay, am right, so please
come on the stage with me for communication. One by one, come. Who can come first on the stage? Who can come? Who can come? Firstly. Who can will come firstly? Yourself. Tell me yourself. खुद बताओ पहले. Raise your hand and come at once. Before I indicate anybody. Come. Without fear. Here is no fear. Open platform है. Here is open platform for you to speak. What you speak. What you can speak. जो कुछ बोल सकते हो यहाँ ओपन है. आओ मेरे साथ. आओ मुझे साथ ही यार भाई. इंडिकेट करना पड़ेगा. अपने आप को रेज नहीं करते हो. हाथ चेंज करा. आ जाइए. सही आ रहा है सर इसको भी बुलाऊंगा. सबको वन बाय वन करके बुलाऊंगा सबको. हाँ. So I want to give a microphone. Okay, क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोफोन. माइक्रोफोन नहीं माइक. माइक्रोफोन बोलता माइक्रोफोन बोल के इसमें कर दिया. इसको इट इज ए माइक ओनली. So it is a mic. Please come on the stage. My dear, my dear. How is everything? Yes. How is everything? आप पूछो मेरे से पूछो. यही पूछो. How is everything? बोलो. Friendly. उनका ध्यान में तो कुछ नहीं है. आगे घटी नहीं है. जैसे नजर अंदाज करो. हाँ. Okay. My dear. We are fantastic. We are fine. And you? I am also fine. मैं भी fine हूँ. Okay? हेलो क्लास में Next. ठीक है बस क्लास में किसने दिया उसको? Oh, okay. My name is this is Ramchandra Dotasra from Dotasra village. And you? What about you? आपका नाम और this is Mukesh Kumar. My name is Mukesh Nidya. I am coming from Tirupura. केडी राणा वो दूसरा नहीं है कि राणा दूसरा है. वो सारे बच्चे मेरे पास केडी दूसरा क्या है. और पहले तो वो नहीं आया. नहीं वो सुभाष नहीं है. आवाज नहीं है. आवाज नहीं है. तो मुकेश प्लीज स्पीक. ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. मैं पढ़ता तो हूँ. बोलिए माइक में. मैं पढ़ता तो हूँ. इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलिए. I am ready. I do study. I do study. मैं पढ़ता तो हूँ. I do study. हाँ इनसे पूछो तुम पढ़ते तो हो. ऐसे सारे
यू से, ई से, दे से, इसका नाम लेकर के राम पढ़ता तो है, श्याम पढ़ता तो है, मनीलाल पढ़ता तो है, बट याद नहीं देता, है ना? इसके बाद भूल जाता है। यही प्रश्न आप यू से, ई से, सी से ऐसे कर सकते हो। चलो और वाक्य बोलने के बोलिए जो भी आप आपके कुछ भी माइंड में है ना वही पूछ लो। उससे पूछ लो आप, वाक्य तो पूछना है। इसलिए पूछ लो आप। इंग्लिश में ट्रांसलेट दे Anything you ask anything what, कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, दो दिमाग में याद पूछ लीजिए, सबसे पूछ लीजिए, हम जवाब देंगे। हाँ, जाने का प्रयास करेंगे, फिर दूसरा को बुलाएंगे। 2 मिनट, ओनली 2 मिनट्स बस। आपके पास माइक लगाइए, माइक लगा लो। हाँ, डोंट टच मोबाइल। Where are you from, man? मैंने बोला बाहर को इसको क्लास रूम में नहीं बोल सकते क्या घर पे? I see you. Sir, Ground. is this right time to have words with you? हाँ, मोबाइल पे बात कर रहे थे। मान लीजिए आप मोबाइल पे बात कर रहे हो, से बात कर रहे हो। This is Pranila speaking. Oh, I see. Pranila नहीं मंगला. This is Pranila speaking. अब Pranila बोलेगा yes, yes. This is Pranila speaking. And you, वो बोले और पूछेगा and you, okay, okay, well, बोल सकते हैं well. This is कौन बोलेगा, कौन बोल रहा है? This is a Mukesh speaking. This is Mukesh Maria speaking. अब मैं बोलूँगा ओके, वेल, ठीक। अब आगे चर्चा चलेगी, आगे क्या चर्चा करेंगे? Can I talk to Mr. Pranila speaking? Pranila, can I talk? Can you talk me with Pranila? क्या तुम मुझे पन्नीलाल से बात करा सकते हो, है ना? Can I talk to पन्नीलाल? अब आप बोलोगे नो, आप ये तो नो में बोलोगे ना? नो, there is no available, है ना? There is no Pranila here, है ना? Then we can talk now. We can talk now. He is not with me. मेरे पास नहीं है, near me. Please call again. तो अब बोलेगा यस। अब आपने बोले यस। मैं पन्नीला नहीं बोल रहा हूँ, मैं मुकेश मैरिया बोल रहा हूँ। यस, आई एम, दिस इज पन्नीला, दिस इज मुकेश मैरिया स्पीकिंग। अब मैं पूछूंगा पन्नीला हूँ, है ना? मुकेश मैरिया से पूछूंगा कि अब क्या पूछूंगा, देखो सुनो ध्यान से। क्या आपके पास समय है बात करने का? इज दिस राइट टाइम टू हैव वर्ड्स विद मी? इज दिस राइट टाइम टू हैव वर्ड्स विद मी? क्या आपके पास बात करने के लिए समय है? क्या पूछा मैं? आप भी इसको ध्यान में रखो। इज दिस राइट टाइम, क्या अभी आपके पास बात करने का समय है? तुम्हारे पास में वक्त है? इज दिस बोलो, क्या सेंटेंस बोलोगे? इज दिस राइट टाइम टू हैव वर्ड्स विद मी? एक बड़ा ही शानदार आप कमेंटमेंट कर सकते हो कि आपके पास है, आप ही पन्नीला हो, आप ही मुकेश कुमार हो, तो आपके पास टाइम है क्या, है ना? देखो, इज दिस राइट टाइम टू हैव वर्ड्स विद मी? बोलिए, मेरे साथ बोलिए। ये सेंटेंस सीखना जरूरी है, वोकल में बैठा लो, इसको कंठस्थ कर लो। इज दिस, फोन पे कॉल कर रहे हैं, फोन उठा लिया किसी ने, इज दिस राइट टाइम टू हैव वर्ड्स विद मी? बोलो, इज दिस, बोलो सारे, स्पीक after me. Is this right time to have words with me?
क्या ये सही समय है बात करने का? नहीं है। आप कर सकते हो तो यस, नहीं कर सकते हो तो नो कर दो। नो है ना, यस और नो में आपको जवाब। अब वापिस इसी को रिपीट करेंगे और इसको कंटेस्ट बनाइए। सबको बच्चे को आना चाहिए, सबको ये बात आना चाहिए कि इज दिस राइट टाइम टू हैव वर्ड्स विद मी? बोलो इज दिस। अरे बोलना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, क्यों डिले कर रहे हो? बोलना फास्ट बोल, आपको बताया था फास्ट बोल बने, बोलना यही सेंटेंस है, तभी कंटेस्ट होगा। आपको माइंड में यही ये छप जाएगा, तब आप बोल पाओगे इज दिस राइट टाइम। बोलो पूरा सेंटेंस एक साथ बोलिए, बोलने का ट्राई करिए। इज दिस राइट टाइम टू हैव वर्ड्स विद मी? पूरा बोलिए, पकड़ नहीं होगा वरना कमांड नहीं कर पाओगे। सुनो इज दिस राइट टाइम टू हैव वर्ड्स विद मी? इज दिस, ये लिखा देता हूँ, लिखा इसको राइट को सीख लेना है। इज दिस राइट टाइम टू हैव वर्ड्स विद मी? ये सेंटेंस आपको इज दिस, देखो मतलब ये हुआ है, वही बता रहा हूँ। और बता रहे किधर सुनो होने दीजिए। इज दिस, यस इज दिस राइट टाइम, ये मेरे तुम बोल रहे हैं कि वो नाम इज दिस राइट टाइम टू हैव, इज दिस राइट टाइम टू हैव वर्ड्स विद मी? ये सेंटेंस है भाई, ये लर्न करने का सभी बच्चों को। इज दिस राइट टाइम, इज दिस राइट टाइम टू हैव वर्ड्स विद मी? ये सेंटेंस आपको, क्या यही समय है बात करने का? क्या यह सही समय है बात करने का? आपसे कॉल कर रहा हूँ तो इसको लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए कॉपी में, नोटबुक में। इसको मैं कभी भी पूछ सकता हूँ इसको, ये आपके लिए दावा की बात है, ये आपसे दावा करता हूँ इसके लिए। तो ये तो मैं आपको सिखा के रहूंगा, सीखना चाहते हो सीख लीजिए, लिख लीजिए। ये नहीं सीखोगे आगे की चीजें बिल्कुल आपको बहुत इस राइट टाइम लिख लीजिए, लिख लीजिए सर। राइट कर दिएगा, नोटबुक में कर लो यार प्लीज। सर मोबाइल में नाम जोड़ दे रहा हूँ, मोबाइल में जोड़ सर मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लो, ये याद करना है। ठीक है, आप ले लो, स्क्रीनशॉट के लिए दे रहा हूँ आपको मोबाइल, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर ये हाँ जिसका भी है, ये किसका था? हां सर, ये किसका था? आपका क्या? हां सर। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, लिख भी लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो। क्या के? हाँ हाँ ना, वर्ड्स आपको मिले ले लिया मोबाइल, ले लिया, वर्ड्स स्क्रीनशॉट ले लिया। हां ले लिया। सर इनो हो तो Is this right time to have words with me? वर्ड्स की जगह टॉप नहीं लगा सकते टॉप है? तो क्या? तो वर्ड्स की आप नो नहीं लगा सकते, यही लगाना है, यही। अब इसका हिंदी में बता देता हूँ। क्या क्या मैं आपके साथ वार्तालाप कर सकता हूँ? और मुझे कुछ बंद करने क्या ये सही समय है? it is right time to have words with me? क्या अभी रात में सुबह गया फिर बात ठीक है किस टाइम होता सही समय है? क्या सही समय है आपसे बात करने का? आपसे बात करने का, करने का क्या क्या सही समय यह सही समय, यह सही, ये भी लगा सकते हो, यह सही समय है आपसे बात करने का। यहाँ पर आपको लगाना हो तो यह सर करने के लिए है क्या यह सही समय है आपसे बात करने का? करने के लिए करने के लिए नहीं, करने का है ना, करने के लिए, करने के लिए तो भी है। इज दिस, अब आपके पास में आ गया, इज लगा दिया पहले, तो आप यहाँ लगा सकते हो, आपको इंट्रोगेशन लगाना है क्योंकि इज से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब से ये पर्सन पूछ रहे हो, आप क्वेश्चन कर रहे हो अगले से,
आप क्या कर रहे हो? क्वेश्चन कर रहे हो। जब क्वेश्चन करते हो ना तो इंटरोगेशन आता है, ये ध्यान रखना। बात करने का सही समय है क्लास खत्म हो गया 9 मिनट और। क्या यह सही समय है आपसे बात करने का? देखो यहाँ भी स्टार्टिंग में क्या से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, है ना? और हेल्पिंग वर्ब जब पहले आ जाता है तो क्या लगता है, और बीच में क्या जब आता है तो WH से शुरू होता है। सेंटेंस जो शुरू होता है व्हाट इज योर नेम। अब हिंदी में बोले व्हाट इज योर नेम, एक सेंटेंस बनेगा व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम। तो इसके अंदर इसकी आप हिंदी बनाओगे तो तुम्हारा क्या नाम है, क्या होगी हिंदी? देखो चीजें समझने का प्रयास करो, तुम्हारा क्या नाम है। देखो कितना आपको गहराई में लेके जा रहा हूँ, चीजें डीपली बता रहा हूँ, क्लोजली बता रहा हूँ आपको उस बॉटम तक टेंजेंट तक टच करता हूँ और फिर अप लाऊंगा। आपको पूरा तैरना सिखाऊंगा, इंग्लिश से खेलना सिखाऊंगा। खेलना क्या बोलते हैं? इंग्लिश से खेलोगे तो खेलने का मतलब है इजी वे में तुम फ्लुएंट स्पीकिंग कर सकते हो। खेलना बोलते हैं किसको? आप इंग्लिश से खेलना समझते हो क्या? आप ओ सर क्या बंद कर दिया। अरे सुनो, अब इसका देखो यहाँ इसमें देखो बीच में अगर क्या है, बीच में है इसका मतलब WH से शुरू होगा। अब अगर स्टार्ट में है ना कोई सेंटेंस में हिंदी में तो वो जरूर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, ठीक? अब इसके अंदर बीच में आया तुम्हारा क्या नाम है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा आंसर? आप उत्तर देना। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज को छोड़ दो, पुराना हो गया, ढसरा पुराना हो गया। दिस इज अपना नाम। दिस इज से बोलो, दिस इज। हाँ स्पीकर बोल रहे हो आप एग्री कर रहे हो तो बोलो दिस इज जिसान स्पीकिंग, ऐसे बोलना। इसको आई एम वाला छोड़ दो, आई एम वाला स्टेटमेंट छोड़ दो। दिस इज आप एग्री कर रहे हो स्टेज पर हो, दिस इज जिसान, दिस इज संदीप स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू। माय डियर ऑडियंस, माय डियर रेस्पेक्टिव parents, guardians, everybody who are listening me, welcome to all of you। ऐसे बोलो, बोलना सीखे, है ना? You are on the stage, if you are on the stage on 15th August, 15th Independence 15 अगस्त को on our occasion of Independence Day, if you want to speak, if you want to entering on Independence Day, okay, don't talk. Yes sir. If you want on Independence Day or Independence Day which we are going to celebrate on 15th August. We are going to celebrate after 4 or 5 days or 6 days after. Celebrating करने जा रहे हैं ना, हमारा होगा ना celebrate. We are going to celebrate 78th Independence Day. ना तो Independence. मैं तो कट गया भाई। मैं सोच अब कौन सा मनाया जा रहा है? इंडिपेंडेंस डे 28th वहाँ मना लिया। पिछली बार था 2023-24 में, अब की बार 2024-25 में मनाएंगे, है ना? 24-25 में जो मनाएंगे वो होगा
78वां. Okay, done. Yes. हाँ, you are getting my point? Yes.